if you go on your fourth router is the other end router. If you go on the fourth router, what are the networks which are connected to R1? 100.0. All your loopbacks, LAN networks 100.0s are on your R1, and your 41.0 networks are on your R4, which is R4 loopback. So presently we are on R4. So if you check the routing table of R4 router, show IP route, you'll able to see all the networks, but we will able to see 10.0 network, which is LAN network of R1, 12.0, which is Rahul कौन है? राहुल शेगावकर आएगा आपका क्लास में? हो सर. ठीक है. So we are typing this command, or we are checking the routing table of R4 router. This is your R4 router. Now what we are able to see, we are able to see 10.0 network, which belongs to R1. And we should also able to see the loopback networks which are created on R1. So we are able to see 100.0, 100.8, 100.16, 100.24. And we also have created one static route on your R1 router, which is 200.0. So let me show the configuration of R1. So run. ध्यान देना, इधर उधर मत देखो. On R1, और your first left hand side का जो सबसे पहले राउटर है R1 राउटर 100.1 slash so 100.1 slash 29. So this is 100.0 network. ये 100.8 का नेटवर्क है, ये 100.16 का नेटवर्क है, ये 100.24 का नेटवर्क है. So these are the 4 LAN networks or R1. At the same time, you have 12. and 15. WAN network, and we also have 10. network on your LAN side. So overall in LAN we have 5 networks. और प्रोटोकॉल में हमने क्या कॉन्फ़िगर किया है? सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन किया है. राउटर EHRP10, we have entered all the directly connected networks. जो सब नेटवर्क्स है, that we have entered their respective subnet mask. ये बाकी 10, 12, 15 ये जो 3 नेटवर्क है, ये /24 है. That's why we didn't give the subnet mask, क्योंकि by default वो ले लेगा /24 because it's a major network. But since other remaining networks are your subnetwork, so we need to mention the subnet mask of that respective subnetwork. That's why we have defined the wildcard mask with that respective subnetwork. तो ये प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया है. और बाकी फिर क्या कॉन्फ़िगरेशन है? बाकी ऐसा कुछ है नहीं. ठीक है. सो दो बार ज्वाइन मत करना. काउंट के लिए 19 एक्चुअली उतने है भी नहीं, वेटिंग उतने है भी नहीं. ठीक है. सो नाउ लेट्स डू ऑथेंटिकेशन between let's say R3 and R6. ये दो राउटर जो है R3 और R6 के बीच में ऑथेंटिकेशन करेंगे. If authentication is successful, then your neighborship between R3 and R6 will form. If it goes down, then R3 won't be having, or R3 won't be showing R6 as a neighbor. तो सबसे पहले हम लोग R3 पे जाते हैं. And what is the IP address of R6 router? What is the IP address of R6 router? जल्दी फटाफट बोलो. What is the IP address of R6 router? 36.0. 36.6. 0 कहाँ से आया? वो नेटवर्क एड्रेस है 36.6. and 36.3 is your R3. What is the IP address of R2?
towards R3 23.2. So if I go to third router, we are on third router. आपके पास डायग्राम होगा. So we are on third router. So if I type show IP EIGRP neighbor, my router says my R3 router बीच में बैठा है, उसको दो नेबर है R2 और R6. तो वो क्या कह रहा है? I have two neighbors 23.2. He says I have two neighbors 23.2 जो कि R2 है, and I have one neighbor 36.6 जो कि R6 है. तो R6 R2 sorry R6 R3 then R2 R3 are both neighbors. In fact, every router will be having a neighbor because ये जब is correctly configured. अब हमें क्या करना है? R3 और R6 के बीच में ऑथेंटिकेशन करना है by using keychain. ठीक है, तो हर एक डिवाइस के बीच में करने की जरूरत नहीं है. अगर हम लोग चाहते हैं कि 3 और 6 के बीच में ही ऑथेंटिकेशन हो तो दोनों के बीच में रख सकते हो. अगर तुम लोग चाहते हो कि नहीं हर दो राउटर के बीच में ऑथेंटिकेशन हो तो हर दो राउटर के बीच में करो. दैट इज योर चॉइस. बट वी विल डू ऑथेंटिकेशन बिटवीन R3 and R6 router. So the first thing to carry out authentication is what is the first thing if you want to carry out authentication? सबसे पहले आपको टाइम देखना होगा दोनों राउटर का क्या टाइम है. So presently we are on R3. I type show clock to check what is the actual at present time. अभी का टाइम क्या है? तो अभी का टाइम क्या है? चलो डेट 29 सितंबर 2023. ठीक है, टाइम इज व्हाट 6 hours 50 minutes. ठीक है, और सेम अगर उसके सेम सामने उसको जो नेबर है दोनों का क्लॉक एज इट इज सेम होना चाहिए R3 और R6 का. सो R6 पे अगर जाके चेक करते हैं शो क्लॉक. सो R6 ऑल्सो से लुक देखो R3 का क्या है अभी 6 hours 51 minutes September 29. R6 का क्या है 6 hours 51 minutes September 29. That means both have the exact same time with respect to date, year, most importantly hour, minute. ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों का मैच होना चाहिए. तो ठीक है, ये दोनों का मैच हो रहा है. तो अभी इसके हिसाब से टाइम क्या हुआ है 6:51 हुआ है. अब हमें दोनों के बीच में ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करना है. ठीक है, तो लेट्स गो टू R3. ऑथेंटिकेशन करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा? यू हैव टू डिफाइन अ की चेन. लेट्स से we'll keep it simple, keychain Cisco. Then we need to specify the first key from that keychain. Let's say key 1. देखो जैसे ही तुमने keychain Cisco टाइप किया आप keychain के अंदर गए. Now I'm typing key 1. Keychain can have multiple keys with different passwords. I'll type key 1. तो now आप keychain के अंदर की के अंदर गए. So now you are going to provide a password. Key string, let's say Cisco 123 is my first key password. क्या किया? पहले keychain डिफाइन किया Cisco, उसके अंदर जाके पहला की पिक किया और पहले की को पासवर्ड दिया. ये पासवर्ड. ठीक है, नाउ वी वांट टू डिफाइन कि ये की कब से एक्टिव होना चाहिए. अभी ये ध्यान में रखना, अभी टाइम क्या था? अभी टाइम है 6:53. ये सब कुछ कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें 8-10 मिनट लगेंगे, तो टाइम लेटेस्ट मत दो. तो लेट्स से अभी 6:53 हुआ है ना, हम 7:02 का या 7:05 ठीक है 7:05 का हम लोग स्टार्टिंग टाइम देंगे दोनों की का, फर्स्ट की का. ठीक है, 7:05. सो एक्सेप्ट लाइफ टाइम. देन अगर आप क्वेश्चन मार्क दोगे तो क्लियर कट वो बता रहा है कि क्या करो, पहले टाइम डिफाइन करो आवर मिनट सेकंड. सो 07:05 सेकंड. चलो ठीक है 00 करते हैं. ठीक है, फिर क्या कह रहा है वो? फिर कह रहा है डेट डालो. सो लेट्स से अकॉर्डिंग टू द क्लॉक. अकॉर्डिंग टू द क्लॉक, अपना कुछ भी डेट नहीं डाल सकते हो. टाइम एंड क्लॉक, टाइम डेट मंथ ईयर एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द क्लॉक. तो अगर क्लॉक में अगर आप देखोगे तो आज के डेट में क्लॉक का टाइम है 29 सितंबर राउटर के ऊपर, तो ये सेम यूज करना होगा. तो 29 सितंबर
2023। आई वॉन्ट कि जो भी पैकेट आएगा एक्सेप्ट, जो भी पैकेट आएगा R3 के पास से, उसको ऑथेंटिकेशन 7:05 के बाद स्टार्ट होना चाहिए। और वो कब खत्म होगा? लेट्स से 7 hour कोलन, ये की हम लोग 5 बजे 7:05 में स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग लेट्स से एंड करते हैं 7:08 पे। ठीक है, 3 मिनट का की रखते हैं। और ये भी 29 सितंबर 2023। ठीक है, तो ये पूरा की अगर तुम लोग स्क्रॉल बैक करोगे तो पूरा की कॉन्फ़िगर किया है। Every single packet should be authenticated. Authentication should start from 7 hour 5 minutes 29 September 2003। और ये कब ये की खत्म होना चाहिए? 7:08, डेट 29 September 2003। तो ये करते हैं एंटर। अब अप एरो की लो, सेम कमांड लो, हर एक पैकेट, आने वाला पैकेट और हर एक सेंड करने वाला पैकेट, दोनों को ऑथेंटिकेशन चाहिए। सो वी विल टाइप सेंड, बाकी का सब कुछ सेम होगा एज इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, राइट। देन वी विल एग्जिट फ्रॉम दिस। ये पहला की कॉन्फ़िगरेशन हो चुका। अब वी केम अगेन बैक टू द की चेन। नाउ विल टाइप key2 password key string is the command to provide the password. Let's say Cisco 456, Cisco 456। तो हम कीचेन के अंदर तो पहले ही थे। देन वी पिक्ड key2, we assigned a password Cisco 456, and now we need to give that this key should be applicable to all the packets which are sent। तो पहला की मेरा खत्म कब हो रहा है? पहला की खत्म कब हो रहा है? 7:08, राइट। ये एंडिंग टाइम है। पहला की खत्म हो रहा है 7:08। उसी टाइम पे दूसरा की स्टार्ट होना चाहिए। तो व्हाट आई विल डू, वो कमांड वैसा का वैसा ही मैंने लिया, सिर्फ यहाँ पे 7:08 करता हूँ। एंड दिस शुड एंड लेट्स से 7:12। गेटिंग व्हाट माई पॉइंट? की वन को हमने स्टार्टिंग डिफाइन किया था, 7:05 पे स्टार्ट होंगे और 7:08 में पहला की खत्म होगा। जब पहला की खत्म होगा उसी टाइम पे दूसरा की, ये जो की2 है, हम लोग कॉन्फिगर दूसरा की 7:08 में स्टार्ट होगा। द एंडिंग ऑफ फर्स्ट शुड बी द स्टार्टिंग ऑफ द सेकेंड। तो हमने सेकेंड की को उसी टाइम पे हमने स्टार्ट किया जिस टाइम पे पहला की खत्म हो रहा है, और ये हमने एंटर किया। ये था हमारा सेंड के लिए, तो हम लोग ये भी करेंगे एक्सेप्ट के लिए। एक्सेप्ट का स्पेलिंग देखना होगा, तो इफ यू टाइप शो रन, थोड़ा सा हमें फास्ट करना होगा क्योंकि 7:05 के लिए भी कम टाइम है। देख, दिस इज व्हाट वी हैव कॉन्फिगर्ड। अभी ये एक काम करते हैं, chain 3 कॉन्फिगर करके उसको निकाल देते हैं। नो की, सो व्हाट वी हैव कॉन्फिगर्ड, देखो हमने 2 की कॉन्फिगर किया। टाइम पहले देखते हैं, तो फिर ये दूसरा राउटर भी कॉन्फिगर करना है। 58, अभी 7 मिनट हमारे पास है दूसरा की कॉन्फिगर करने के लिए। उसके पहले हमें दूसरे राउटर पे जाके ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। देखो, तो शॉर्ट में मैं फटाफट एक्सप्लेन करता हूँ। ये तुम्हारा पहला की था, फर्स्ट की चेन डिफाइन किया सिस्को। सिस्को के अंदर का पहले की को अपने पासवर्ड दिया 1 2 3। पहला की कब स्टार्ट हो रहा है? सो फर्स्ट की विल यूज फॉर ऑथेंटिकेशन। पहला की कब यूज होगा? हर एक पैकेट के लिए जो जाएगा और जो आएगा, एक्सेप्ट एंड सेंड। लेकिन पहला की स्टार्ट कब हो रहा है? 7:05, खत्म होगा 7:08। फिर उसके बाद दूसरा की स्टार्ट होगा, हिज पासवर्ड विल बी ऑब्वियसली डिफरेंट। और दूसरा की कब स्टार्ट होगा?
जब पहला की खत्म हो रहा है उसी टाइम पे दूसरा की स्टार्ट होना चाहिए, और दूसरा की का एंडिंग टाइम। चलो फटाफट हम लोग R6 पे जाते हैं। अच्छा, इस पे और करना होगा। इस पे ये तो हमने की कॉन्फ़िगर किया, इंटरफेस पे लगाया नहीं ना अभी तक। तो विल बी गोइंग अंडर 1/0, जो R6 के डायरेक्शन में इंटरफेस है R3 का। सो इंटरफेस F1/0 IP authentication mode EIGRP TAM MD5, use MD5 as a authentication। फिर अप एरो की वही वापस लो, IP authentication कीचेन, कीचेन का नाम कीचेन, फिर EIGRP, ये तो कमांड है, ये तुम लोग मिल जाएंगे कमांड। और फिर कीचेन का नाम सिस्को। तो ये हमने पोर्ट पे अप्लाई किया। अभी हम लोग R6 पे आते हैं। देखो, अभी अगर तुम लोग देखोगे R3 पे, तो IP EIGRP नेबर, देखो नेबर डाउन हुआ। क्यों नेबर डाउन हुआ? R3 के FF1/0 पोर्ट पे हमने ऑथेंटिकेशन अप्लाई किया, और R6 पे ऑथेंटिकेशन है नहीं, तो R3 और RP पे नेबरशिप डाउन हुआ। तो इमीडिएटली हमें जाके, कितना टाइम अभी बचा है, 2 o'clock 52 से 3 मिनट बचे, 3 मिनट के अंदर हमें वो करना है। विल ट्राई कॉन्फ़िग चेन सिस्को सेम होना चाहिए, P1 स्ट्रिंग, पासवर्ड सेम दिया था वहां पे, सेम पासवर्ड एज कॉपी होना चाहिए। एक्सेप्ट लाइफ टाइम 070500 and 29 SCP R2023, एंड कब होगा? 0705, सॉरी 080029 सितंबर 2023। और ये सेम हम लोग फटाफट करके एक्सेप्ट के जगह पे सेंड भी डाल देते हैं। ये पहला की, बाद में टू स्ट्रिंग सिस्को 456, और फिर उसका दूसरा की कब स्टार्ट होगा? 7 बज के, इसको हम लोग थोड़ा डिले करते हैं, 7:09 करते हैं, और ये 7:12। सेंड के बजाय सेंड प्लस एक्सेप्ट होना चाहिए, ACCEPT। 7:09 में हम लोग दूसरा की स्टार्ट करेंगे। इस पे थोड़ा सा हम लोग टाइम अलग देते हैं। ये बीच में से पॉपअप आते जाएंगे, उसके बारे में इतना मत सोचो, ठीक है। अभी इसके इमीडिएटली इसके भी इंटरफेस पे जाना है, F0/0 IP ऑथेंटिकेशन। देन IP ऑथेंटिकेशन के बाद में क्या है? मोड EIGRP 10 MD5। वापस अप एरो की पॉपअप आते जाएगा, उसका कुछ नहीं। IP ऑथेंटिकेशन कीचेन फॉर EIGRP 10, और आगे कीचेन का नाम सिर्फ। क्लॉक क्या हुआ है? शो क्लॉक। ठीक है, 7:03 हमारा, अभी भी हमारा 2 मिनट पहले हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। तो अभी हम लोग अगर देखो, अभी भी एक ही नेबर है, क्योंकि अभी तक की स्टार्ट नहीं हुआ है। की स्टार्ट होगा 7:05। क्यू टाइप शो क्लॉक, 7:04 हुआ है, तो अभी भी की स्टार्ट नहीं हुआ। की कब स्टार्ट हो रहा है? 7:05। तो जब
7:05 होगा तब ऑथेंटिकेशन होगा और नेबरशिप का पॉपअप आएगा। अभी देखो, अभी अगर तुम लोग देख रहे हो नेबर, तो अभी कोई नहीं, इसका 23.2 नेबर है क्योंकि उसके बीच में उसका ऑथेंटिकेशन नहीं चल रहा। R3 का ऑथेंटिकेशन किसके साथ चल रहा है? 6 के साथ। तो 36.6 अभी वहां पे वो नहीं दिखा रहा है कि 36 और 6 इज माई नेबर। तो क्यों नहीं बता रहा है? कि ऑथेंटिकेशन अप्लाई किया है और ऑथेंटिकेशन का पहला की एक्टिवेट होगा 7:05 में। अभी 7:442 हुआ है, 7:449, 7:452, 7:454, 7:457, 7:458, 7:5। अभी ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। देखो अभी आ गया नेबरशिप अप, न्यू एडजेसेंसीज फॉर्म। इसका मतलब पहला की अप्लाई हुआ। इफ यू टाइप शो आईपी एज आईपी नेबर नाउ, अब उसको आइडेंटिफाई हुआ 36.6। अब वो कितने टाइम से नेबर बना? जस्ट अभी 13 सेकंड से। सो हमने क्या किया? सेकंड की कब स्टार्ट हो रहा है? 2 मिनट का टाइम है हमारे पास। तो यू चेक द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कीचेन। कीचेन में हमने ये, हेलो, तो कीचेन में हमने ये कॉन्फ़िगरेशन किया। वी डिफाइन द नेम ऑफ द कीचेन, देन वी पिक द फर्स्ट की, we assign the password. This password should, this key number and key password should be same on identical। आमने सामने राउटर पे जो की वन है उसका पासवर्ड अगर फर्स्ट राउटर पे कॉन्फ़िगर किया है तो सेम की नंबर विद द सेम पासवर्ड सेम सामने वाले राउटर पे कॉन्फ़िगर होना चाहिए विद द सेम टाइम ड्यूरेशन। तो की चेन का नाम सिस्को रखा, पहला की क्लिक किया, उसको एक पासवर्ड दिया। वो कब स्टार्ट हो रहा है? पहला की 7:05 पे, खत्म होगा 7:01 में। दिस की will be used to check all your incoming packets and all your outgoing packets। मतलब दोनों इनकमिंग आउटगोइंग पैकेट दोनों के लिए ये की यूज होगा ऑथेंटिकेशन करने के लिए। और फिर की टू कब स्टार्ट हो रहा है? 8 मिनट पे, जबकि जो पहला की खत्म हो रहा है उसी टाइम पे वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। अगर हम लोग R6 पे आते हैं, क्या क्लॉक हुआ है? शो क्लॉक। अभी 6 मिनट, मतलब और 2 मिनट के बाद हमारा दूसरा की स्टार्ट होगा। ठीक है। अभी अपना R6 राउटर का अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखें, if we check R6 router configuration, तो we have configured key वन का पासवर्ड ऑब्वियसली सेम होना चाहिए। ये यहाँ पे भी सेम टाइम दिया 7:05। और ये यहाँ पे जो पहला की खत्म हो रहा है वो भी 7:08। लेकिन हमने यहाँ पे जानबूझ के सेकंड की जब स्टार्ट किया है वो 7:09 पे स्टार्ट किया। और अगर तुम लोग R3 पे जाओगे तो R3 पे सेकंड की कब स्टार्ट हो रहा है? 7:08। तो 7:08 पे R3 पे सिस्को 456 की यूज होना स्टार्ट होगा। लेकिन R6 पे 8 और 9 के बीच में कोई की है नहीं, क्योंकि पहला की 8 बजे खत्म हो रहा है। देखो ऑथेंटिकेशन फेल हुआ। क्यों फेल हुआ? अगर हम लोग इमीडिएटली अगर हम लोग क्लॉक देखें तो क्लॉक टाइम क्या हुआ है? 8:10 हुए। मैसेज क्या आया था? मैसेज आया था ऑथेंटिकेशन फेल्ड। देखो इज डाउन। क्यों ऑथेंटिकेशन फेल हुआ? क्यों फेल हुआ? क्योंकि पहले R3 राउटर पे जो की है वो की 7:08 पे स्टार्ट हुआ। और सेकेंड राउटर पे हमने, मतलब R6 राउटर पे हमने R2 का जो की स्टार्टिंग टाइम दिया है वो 7:09 का दिया है। तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि R3 पे 7:08 पे की स्टार्ट हुआ, लेकिन आपका R6 पे वो की 7:09 में स्टार्ट हो रहा। तो 1 मिनट के लिए R3 के पास की है, R6 के पास की नहीं है, इसके लिए ऑथेंटिकेशन फेल हुआ। शो आईपी चेक करने के पहले 1 मिनट चला गया। ठीक है, अभी नेबरशिप वापस वापस आया क्योंकि अभी टाइम देखोगे शो क्लॉक, देखो 7:09 हो गया।
तो 9 मिनट होने के बाद इसका की भी एक्टिव होगा विद द सेम पासवर्ड। समझ में आया? हेलो यस सर। सबको? सर तो ये थोड़ा फास्ट इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमने क्लॉक का टाइम दिया है। तुम लोग प्रैक्टिकल करते वक्त क्या कर सकते हो कि पहला की अगर तुम लोग 7 बज के या जो भी तुम्हारे क्लॉक का टाइम होगा, लेकिन लेट्स से एग्जांपल अगर कॉन्फ़िगरेशन करते टाइम पे अगर तुम्हारा क्लॉक है लेट्स से 7:20, तो तुम लोग आगे के 20 मिनट मान के चलो तुम्हें कॉन्फ़िगर करने के लिए लगेगा। तो जो पहला की स्टार्ट करोगे, मान लो अभी आपके क्लॉक में टाइम है 7:20, तो अब उस वक्त आप कॉन्फ़िगरेशन करना स्टार्ट कर रहे हो, तो मेक श्योर आप की पहला स्टार्ट कब करो, 7:40 को, क्योंकि 20 मिनट लगेगा शायद आपको कॉन्फ़िगरेशन करने में। तो 20 मिनट तक, 15-20 मिनट तक आप ये कॉन्फ़िगर करोगे, उससे उतना टाइम लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी सेफर साइड आप 440 डाल दो 20 मिनट, तो उस टाइम पे आप पूरे दोनों की कॉन्फ़िगर कर लेना। लेकिन फिर क्या करो, जो पहला की एंड हो रहा है और दूसरा की स्टार्ट हो रहा है किसी एक साइड पे मतलब किसी एक डिवाइस पे, आइदर R3 पे या R6 पे, किसी एक पे जानबूझ के पहले की और दूसरे की के बीच में डीले रखो। और वो डीले कितना रखो, लेट्स से अभी यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 मिनट का देखा था, तो अगर तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन ठीक ठाक देखना है तो तुम लोग क्या कर सकते हो, डीले 5 मिनट का रखना। तो 5 मिनट का जब डीले रखोगे तो R3 पे क्या होगा, R3 पे दो की के बीच में कोई डीले है नहीं, तो R3 पे क्या होगा, आपका ऑथेंटिकेशन पासवर्ड यूज होगा, लेकिन R6 पे आपका डीले है। तो इसके वजह से क्या होगा, वो पॉज के बीच में, मतलब मान लो अगर आप 5 मिनट का पॉज दे रहे हो, तो 5 मिनट के पॉज के बीच में R3 और R6 के बीच में कुछ ऑथेंटिकेशन नहीं होगा, तो नेबर्स नहीं दिखेंगे, कोई भी अपडेट शेयर नहीं होगा। लेकिन जब भी राउटर 6 का सेकेंड की स्टार्ट होगा, तब वापस नेबरशिप का पॉपअप आएगा, नेबरशिप अप करके। क्लियर है? यस सर। नाउ इट इज 11:46, सेकेंड की 7:12 का हमने दिया है। तो 7:12 के बाद दोनों की नहीं होगा, ना फर्स्ट की होगा ना सेकंड की होगा। नेबरशिप डाउन हुआ 7:12 के बाद, ऑथेंटिकेशन फेल्यूर, नेबरशिप डाउन। कौन नेबर डाउन हुआ, किसके साथ, 36.3 के साथ नेबरशिप डाउन हुआ। क्यों? क्योंकि अभी दोनों की का टाइम आपका खत्म हुआ। पहला की का टाइम आपका 7:08 में खत्म हुआ, दूसरा की आपका 7:08 पे स्टार्ट हुआ, लेकिन दूसरा की खत्म हुआ 7:12। अब 7:12 हो चुके हैं, तो दूसरा की भी एक्सपायर हो चुका। अब दोनों R3 पे भी और R6 पे भी कोई भी ऑथेंटिकेशन की अभी के टाइम पे नहीं है, तो नेबरशिप डाउन हुआ। तो दोनों तरफ की नहीं है, तो नेबरशिप डाउन होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? इज नॉट शोइंग ना, 36.3 इज माई नेबर, नहीं बता रहा मैं। तो नेबरशिप डाउन हुआ, क्यों? बोलो फटाफट। डिले। डीले? कौन सा डीले? हाँ, डीले नहीं कौन सर, नहीं सा? सर, सॉरी, उसमें नहीं है हम। नहीं मतलब मुझे जानना है क्या डीले, किसके रिगार्डिंग बोला डीले? नहीं, मुझे लगा सर उसमें डिले दिया था, लेकिन इसमें नहीं है। मतलब डीले दो की के बीच में? दो दो की राउटर के के बीच में जो डिले दिए थे ना पहले, तो मुझे लगा सेम ही है उसमें, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, राउटर के बीच में डिले मतलब जो की 1 की 2 के बीच में जो दिया था पॉज, वही ना, 7:08 और 7:09, या दूसरा कुछ? हाँ हाँ। नहीं नहीं सर, वही। तो वो पहला की खत्म होके दूसरा की भी खत्म हुआ ना अभी। देखो अगर तुम लोग शो रन करोगे तो पहले दूसरे की का भी टाइम खत्म हो चुका है।
अगर तुम लोग सेकंड देखो, ये दूसरा की कब स्टार्ट हुआ था? पहला की ये 7:08 में स्टार्ट हुआ, सॉरी एंड हुआ। दूसरा की के बीच में पॉज था। तो ठीक है, 1 मिनट के ऑथेंटिकेशन के लिए 1 मिनट के लिए नेबरशिप डाउन हुआ क्योंकि ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाया। लेकिन 7:09 पे वापस नेबरशिप अप आया। अब 7:12 पे दूसरा की भी खत्म हो गया। अब वो R6 पे भी कोई तीसरा की है नहीं, और R3 पे भी देखो तो R3 पे भी कोई तीसरा की है नहीं। R3 का की भी 7:12 पे खत्म हुआ, सेकंड की। अगर तीसरा की कोई होता, 7:12 पे स्टार्ट हो रहा है, तो आपका तीसरा की यूज करके ऑथेंटिकेशन हो जाता। लेकिन अभी दोनों तरफ, नॉर ऑन R3 नॉर ऑन R6, दोनों तरफ कोई भी तीसरा की है नहीं। दो ही की कॉन्फ़िगर थे। पहला की 7:08 पे खत्म हुआ, दूसरा की 7:12 पे खत्म हुआ। अभी अगर तुम लोग टाइम देखोगे तो अभी 7:15 हुए। तो पिछले 3 मिनट मतलब 7:12 के बाद एक भी की कॉन्फ़िगर नहीं है दोनों तरफ। तो ऑथेंटिकेशन डाउन हो गया। तो ये डाउन होना चाहिए था या फिर अप आना चाहिए था? सर अप आना चाहिए था, क्योंकि अभी दोनों में की नहीं है, इसका मतलब कि ट्रैफिक आ जा सकता है ना। हाँ देखो, अभी वो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जो पोर्ट है ना आपका, वैन पोर्ट, उस पे आपने ऑथेंटिकेशन MD5 यूज करना है करके डिफाइन किया है। ये देखो, आपने R3 के 1/0 पे वो अप्लाई किया था कि ये पोर्ट से जो भी ट्रैफिक जाएगा आएगा, ऑल दोस ट्रैफिक विल बी ऑथेंटिकेटेड बाय यूजिंग MD5। समझ में आ रहा है? कीचेन तो यस अभी सर। है नहीं, कीचेन तो अभी है नहीं। लेकिन आपने उसको बोला है ना पोर्ट पे कि यू चेक एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द कीचेन, और यू डू ऑथेंटिकेशन बाय यूजिंग MD5। तो अगर तुम लोग ये कमांड निकाल देते हो, मतलब भले कीचेन वैसे ही रहने दो कॉन्फ़िगरेशन कीचेन का, लेकिन ये इंटरफेस पे जाके जो चीज अप्लाई की है तुमने, जो कीचेन यहाँ पे अप्लाई किया है ना, कीचेन नीचे कॉन्फ़िगर किया था कॉन्फ़िग मोड पे, फिर वो इंटरफेस 1/0 पे तुमने उसको कॉल किया कि कीचेन सिस्को वाला यूज करके ऑथेंटिकेशन करो। समझ में आ रहा है? आपने पूरा कीचेन का कॉन्फ़िगर किया, कीचेन सिस्को की 1 पासवर्ड, की 2 पासवर्ड, सब कुछ कॉन्फ़िगर किया। और उसके बाद आप 1/0 पोर्ट के अंदर गए और उस पोर्ट को बताया कि यू प्लीज ऑथेंटिकेट बाय यूजिंग कीचेन इंफॉर्मेशन whose name is Cisco and carry out the authentication। अब जब उसको बोला गया है कि ये पोर्ट पे तू कीचेन यूज करके ऑथेंटिकेट कर, तो फिर वो हर बार वो ऑथेंटिकेशन करने का प्रयास करेगा। तो ना ही इसके ऊपर अभी कोई लाइव की है, ना सामने कोई लाइव की है। तो दोनों के बीच में ऑथेंटिकेशन नहीं हो पा रहा है। अगर तुम लोग ये कमांड निकाल दो दोनों तरफ से, सिर्फ एक तरफ से निकालने से नहीं होगा। तो इंटरफेस F1/0, और अगर तुम लोग टाइप करते हो, ये दोनों को निकालना है, सिंपल। सो नो IP ऑथेंटिकेशन कीचेन से इसको ये कमांड निकाला। दूसरा जो मोड वाला कमांड है, ये मोड वाला कमांड, इसको भी निकाल दो। बाकी कीचेन को हमने हाथ नहीं लगाओ, वैसे के वैसे रहने दो, दैट विल बी यूजलेस। वो कीचेन होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन तो दिखेगा, वो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल में तो है, लेकिन अभी हमने इंटरफेस पे उसको अप्लाई नहीं किया। अप्लाई करने का जो कमांड था वो हमने निकाल दिया। तो ये कॉन्फ़िगरेशन तो तुम्हें दिखेगा, ये तो है राउटर पे अभी भी कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन पोर्ट पे इसको अप्लाई नहीं किया। जो अप्लाई करने का जो कमांड था, देखो ये पोर्ट पे जो कमांड था पहले, कीचेन यूज करो, ऑथेंटिकेशन MD5 यूज करो, उसको निकाल दिया। तो ये पोर्ट पे अभी जो भी ट्रैफिक आ रहा है जा रहा है, उसको वो ऑथेंटिकेट नहीं करेगा। सेम वे R6 पे जाके भी आपको उसके पोर्ट पे भी जो आपने ऑथेंटिकेशन अप्लाई किया था उसको निकालना होगा, तभी जाके आपका ऑथेंटिकेशन डिसेबल होगा। देखो ये मोड था, ये कीचेन वाला कमांड है, इसको नो किया। फिर ये MD5 वाला कमांड दिखाएगा, मोड MD5, ये वाला, इसको लेके इसको भी हम लोग निकाल देते हैं R6 पे। सो नाउ
both the routers are having keychain configuration. दोनों राउटर पे कीचेन तो वो हमें निकालना है, वो तो वैसा का वैसे ही है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि ये अप्लाई ही नहीं हुआ है। ये तो सिर्फ अपने कॉन्फ़िगरेशन करके अब राउटर के रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में दिख रहा है, लेकिन अप्लाई करोगे तभी तो वो काम करेगा। तो अप्लाई करने के लिए इंटरफेस पे अब जाके वो ऑथेंटिकेशन मोड कौन सा यूज करना है, ये कीचेन जो सिस्को है उसको अप्लाई करो, ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन अभी पोर्ट से निकाल दिया है। तो नाउ if you type show IP EIGR enable, show IP EIGR enable, you will be able to see your neighbor 36.3, ये 6 पे है, और R3 पे जाके भी आपको नेबर दिखेगा। थर्टी 36.6 क्लियर है? हेलो हेलो, यस सर। क्लियर है sir. ना? हाँ सर। सर आवाज डाउट ब्रेक है हो किसी को? सबके लिए ब्रेक हो रहा है वॉइस या सिर्फ मेरे सबके लिए आवाज हाँ ब्रेक हो रहा है सर, मेरा? हाँ, आता जाता ब्रेक। यस सर। ब्रेक हुआ था, अभी आ रहा है क्लियर? हाँ अभी ठीक है। यस सर। यस सर। डाउट है इसमें कुछ? नहीं नो सर। सर। तो तुम लोग जब कॉन्फ़िगर करोगे, चलो शो क्लॉक अगर देखते हैं, देखो अभी मान लो एग्जांपल है, मेरे यहाँ पे तुम्हारा क्लॉक अलग दिखा सकता है टाइम, तो तुम तुम्हारे टाइम के हिसाब से पहले कीचेन कॉन्फ़िगर करने से पहले दोनों आमने सामने राउटर का क्लॉक देखना, क्लॉक क्या है। और ये जो भी, देखो ये ये अक्टूबर 2 हो सकता है, लेकिन जो भी उस वक्त राउटर का डेट टाइम है वो वही यूज करना है। हमें हमारे पर्सनल क्लॉक का यूज नहीं करना है कि लैपटॉप का टाइम क्या हुआ है या फिर अभी एक्चुअल यूटीसी टाइम क्या हुआ है, वो हमें चेक नहीं करना है। हमें ये चेक करना है कि ये इंस्टेंट पे राउटर पे क्या टाइम है, विद डेट टाइम एंड ईयर, वो सेम यूज करना है, क्योंकि वो अपने डिवाइस का टाइम कंपेयर करेगा कीचेन के साथ, वो कोई आपका लैपटॉप का टाइम नहीं देखेगा। गेटिंग व्हाट माय पॉइंट इज? तो सबसे पहले शो क्लॉक करके देखना आपके डिवाइस पे क्या टाइम है। तो मान लो अभी अपने ये डिवाइस पे 7:21 हुआ है, तो आपको कीचेन कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको दोनों डिवाइस पे कीचेन कॉन्फ़िगर करना है, सब कीचेन नेम सिस्को की 1, फिर की स्ट्रिंग, फिर उसको एक्सेप्ट सेंड, फिर की 2 उसको की स्ट्रिंग। इसलिए यहाँ पे अप एरो की से कमांड लेना इंपॉर्टेंट होगा। वो हर बार पूरा कमांड टाइप करके बैठोगे तो आधा घंटा लगेगा सिर्फ टाइप करने में। तो यूज अप एरो की, और वो सिर्फ एक्सेप्ट का सेंड, ये वैसे वैसे करो। फिर अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें दोनों राउटर पे दोनों की कॉन्फ़िगर करने के लिए 20-25 मिनट लगेगा, तो सिक्योर साइड क्या करो, जो पहला की का स्टार्टिंग टाइम है वो अभी मान लो यहाँ पे अगर 7:21 है, तो पहला की का स्टार्टिंग टाइम रखो 7:45। अगर आपको लगता है कि 20-25 मिनट लगेंगे कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, हालांकि उतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी अगर स्लोली भी करते हो तो भी तुम लोग 7:45 का टाइम लो। फिर पहला की को एंड करो 7:48, और दूसरा की स्टार्ट करो 7:48 पे, या फिर 5 मिनट का पॉज ले लो बीच में। मतलब पहला की तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है 7:45 को, वो खत्म करो 7:50 को, और 7:50 को दूसरा की स्टार्ट करो। लेकिन सामने वाले राउटर पे 7:45 को पहला की स्टार्ट हो रहा है, तो सामने वाले राउटर पे पहला की एंड करो 7:47 पे। तो होगा क्या, पहले राउटर पे 45 के बाद दूसरा की स्टार्ट हुआ, लेकिन सेकंड राउटर पे 46 और 47 तक पहला ही की है, क्योंकि सेकंड राउटर पे पहला की, सेकंड की कब स्टार्ट करोगे तुम लोग, 7:48 पे। तो होगा क्या, 7:45 से लेके 7:47 तक ये 2 मिनट के लिए क्या होगा, पहले राउटर पे सेकंड की स्टार्ट हुआ है, और दूसरे राउटर पे अभी भी पहला की ही चल रहा है, क्योंकि पहला की खत्म हो रहा है 7:47 पे। समझ में आ रहा है? तो तुम्हें दिखेगा ऑथेंटिकेशन फेल हुआ करके, नेबरशिप में नेबर नहीं दिखेगा, नेबर टेबल में।
जब दूसरा की जब स्टार्ट होगा सेकेंड राउटर पे, तब नेबरशिप वापस रिबिल्ड होगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। यस सर। आवाज येतो है? सर हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो ये था तुम्हारा की चेन का पैर। ठीक है, अभी हम लोग जो स्टफ वाला कंसेप्ट है उसको देखेंगे। सो लेट्स गो ऑन R1, और R1 पे हमने चेक करते हैं हमने क्या कॉन्फ़िगरेशन किया है। जैसे बाय डिफॉल्ट वही है, शो IP INP brief, दिस इज द कमांड टू चेक द इंटरफेस इंफॉर्मेशन। देखो हमने ये इतने इंटरफेस, ये तो ठीक है, ये तो तुम्हारा फिजिकल 2 वैन है और एक लैन है, लेकिन ये वर्चुअल लैन हमने क्रिएट किए। 100.1 मीन्स 100.0 का नेटवर्क है, 100.9 मीन्स 100.8 का नेटवर्क है, 100.17 मतलब 100.16 का नेटवर्क है, 100.25 मतलब 100.24 का नेटवर्क है। तो ये 4 लैन नेटवर्क्स हमारे फर्स्ट राउटर पे कॉन्फ़िगर्ड है। ठीक है, अभी हम लोग ये सेम R4 पे देखते हैं, तो ये नेटवर्क्स एडवर्टाइज होके होके फिर R4 राउटर तक पहुंचेगा, दैट इज योर लास्ट राउटर राइट हैंड साइड। तो हम लोग ये देखते हैं कि R4 राउटर पे ये कैसे दिख रहा है, उसके राउंड टेबल में होना चाहिए ये। सो इफ वी टाइप शो IP रूट ऑन R4 राउटर, and now look, he's showing individual networks 100.0, 100.8, 100.16, 100.24। क्यों ये दिखा रहा है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट समराइजेशन हमने बंद किया है, ऑटो भी नहीं है मैनुअल भी नहीं है। तो ऑटो भी नहीं है मैनुअल भी नहीं है, इसलिए इंडिविजुअल सब नेटवर्क्स दिखा रहा है, इंडिविजुअल सब नेटवर्क्स 1 by 1 दिखा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे फिलहाल, R1 को कहेंगे कि वट एवर यू आर प्रोपोगेटिंग, वट एवर यू आर एडवर्टाइजिंग, प्लीज डोंट एडवर्टाइज इंडिविजुअल नेटवर्क। देखो इंडिविजुअल सब नेटवर्क्स कब जाएगा बोलो, व्हेन योर इंडिविजुअल नेटवर्क्स विल बी एडवर्टाइज्ड, इंडिविजुअल सब नेटवर्क्स विल बी एडवर्टाइज्ड। हाँ, समराइजेशन बंद होगा तो समाराइजेशन मतलब वो ऑटो हो या मैनुअल हो, अगर दोनों टाइप का समाराइजेशन इनेबल नहीं है तो राउटर विल एडवर्टाइज इंडिविजुअल सब नेटवर्क्स। R1 इंडिविजुअल सब नेटवर्क्स एडवर्टाइज कर रहा है, इसलिए R4 के टेबल में चारों अलग अलग सब नेटवर्क्स दिख रहे हैं। दिस इंक्रीजेस योर साइज ऑफ राउटिंग टेबल। अभी हम लोग R1 को बताएंगे प्लीज डोंट एडवर्टाइज इंडिविजुअल सब नेटवर्क्स बट एडवर्टाइज अ समरी। तो ऑटो समरी हम लोग इनेबल करेंगे, मैनुअल अभी नहीं करेंगे, ऑटो समरी इनेबल करेंगे। तो जाएंगे कॉन्फ़िग ट्री पे, प्रोटोकॉल के अंदर राउटर EIGRP10, हम लोग R1 पे है। R1 को हम लोग कहेंगे कि प्लीज डोंट एडवर्टाइज इंडिविजुअल नेटवर्क्स बट प्लीज एडवर्टाइज ऑटो समरी। ऑटोमेटिक वो आइडेंटिफाई करेगा 4 सब नेटवर्क्स किस मेजर नेटवर्क है, और वो समरी एड्रेस दैट मींस मेजर नेटवर्क एडवर्टाइज करेगा। We have done on R1. Now R1 should advertise individual, sorry, not individual, but a summarized route. So if you check back the routing table on R4 again, ये देखो, समझ में आया? यस सर। यस सर। Yes, sir. So we enabled auto summarization on R1. पहले 4 सब नेटवर्क्स R4 पे अलग अलग दिख रहे थे। If you look back the routing table again on R4, ये 4 सब नेटवर्क्स आपको अलग अलग दिख रहे थे। Now ये 4 सब नेटवर्क्स को उसने एक ही मेजर नेटवर्क R1 में कहा तुमने कि प्लीज डोंट सेंड इंडिविजुअल राउट्स बट सेंड अ समराइज्ड रूट बिकॉज ऑटो समरी इज इनेबल्ड ऑन द राउटर। तो R1 ने क्या किया, ऑटो समराइजेशन करके वो चारों सब नेटवर्क किस मेजर नेटवर्क में आते हैं वो सब नेटवर्क एड्रेस फाइंड आउट किया, और वो सब नेटवर्क एड्रेस R1 ने एडवर्टाइज किया, इसलिए R4 के टेबल में वो समरी राउट दिख रहा है। नाउ विल अगेन गो टू योर R1 राउटर, हम लोग ऑटो समरी को नो करके डिसेबल करते हैं। Once we disable auto summary, R4 का टेबल अगर हम लोग वापस देखेंगे, R4 का राउटिंग टेबल, again we should able to see the individual subnetworks.
100.0, 100.8, 100.16, 100.20। ठीक है, अब हमें करना है मैनुअल समराइजेशन। अब हमें करना है मैनुअल समराइजेशन। So we are going to inform R1, please, instead of sending individual routes, we also don't want attach summarization, हमें मैनुअल करना है। तो हम क्या करेंगे, इंटरफेस देखो, अगर तुम लोग तो IP ब्रीफ करो, हमें देखो अभी क्या करना है तुम्हें, ये जो दो नेटवर्क है ना, पहले दो, इनको ही समराइज करना है। बाकी के लास्ट के दो वैसे के वैसे जा रहा है तो जाने दो, लेकिन पहले दो है उनको ही समराइज करना है। तो समरी राउट क्या होगा, अब ये चार नेटवर्क इंडिविजुअल जा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि पहले दो को समराइज करके भेजे, बाकी दो को ऐसे जैसा है वैसा ही भेजो। तो ये पहले दो नेटवर्क को समराइज करना है मुझे। आई वॉन्ट R1 टू एडवर्टाइज द समरी राउट, जो पहले दो है उसके लिए। बाकी जो 10, 100.16 और 100.24 वाले नेटवर्क है वो इंडिविजुअली जाने दो, मुझे सिर्फ पहले दो को समराइज करके एडवर्टाइज करना है। तो क्या समरी राउट होगा, 100.1/28 100. 1/28 नहीं, 100.0 आएगा ना, 100.0 पहला नेटवर्क है ना, 100.0, 100.0/28। समझ में आया, क्योंकि 100.0/28 मतलब क्या, 16 का ब्लॉक, मतलब 100.1 से स्टार्ट होके 100.15 तक जाएगा। और 100.15 मतलब जो दूसरा सब नेटवर्क है 100.8, उसका लास्ट IP 100.15 है, तो इसका मतलब दोनों सब नेटवर्क एक ही जो एडवर्टाइज कर रहे हो राउट है उसमें आ गया। समझ में आया या नहीं, यस सर। क्लियर है सबको। Yes, sir. सो गो टू कॉन्फिग T ऑन R1। देखो वापस हम लोग R4 देखते हैं, R4 पे देखो, again will type show IPv on R4। देखो ये इंडिविजुअल है, ठीक है, क्योंकि अभी ऑटो समरी ऑफ की है, तो वो इंडिविजुअल शेयर करेगा। अभी हम लोग करेंगे मैनुअल समराइजेशन। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटरफेस F1/0, ठीक है। 1/0 मतलब देखो, अगर तुम लोग R4 पे आए तो R4 क्या कह रहे हैं, उसी 1/0 पोर्ट पे क्यों किया, क्योंकि R4 के पास वो जो इंफॉर्मेशन है 100.08 देन 24, ये कहाँ से आ रहा है, 47.7 से आ रहा है, 47.7 से आ रहा है। क्यों 47.7 से आ रहा है, 47.7 मतलब कौन, 47.7 मतलब ये वाला, ये राउटर है ना। तो R1 वो जो नेटवर्क है वो ऐसे भी एडवर्टाइज कर रहा है, R1 is having two neighbors, R2 and R5. So R1 is advertising to R2, तो वो R2 से R3, R3 से R6 और R4 को वो सेम नेटवर्क नीचे से भी पता चलेगा, ऊपर से भी पता चलेगा, right? Because R4 has two neighbors, but the routing table says he has treated this as the best via R7, कि routing table में best होगा via R7, which is 47. अभी R4 का टोपोलॉजी टेबल देख, IP EIGR3 टोपोलॉजी, अगर टोपोलॉजी टेबल हम लोग देखें तो ये 100 का जो नेटवर्क है, ये कहाँ से है, एक ही पाथ बता रहा है वो, 47.7, 100.0 मतलब 100 जो भी से, नहीं तो भी 100.0 है, 24 है, तो ये पाथ बता रहा है 47.7, ये ऊपर वाला पाथ क्यों नहीं बता रहा है, R6 से भी एक पाथ है, बट वाई इज नॉट शोइंग अ पाथ बाय R6,
क्योंकि ये टोपोलॉजी टेबल है ना, उसमें तो दिखना चाहिए 2 पाथ, और जो बेस्ट होगा वो तुम्हारा राउंड टेबल में दिखेगा क्योंकि वो सक्सेसर होगा। बट वाई इज ओनली शोइंग द पाथ वाया R7? टोपो में दूसरा पाथ क्यों नहीं दिख रहा है, पाथ वाया R6? हम्म, बोलो। हेलो। अरे R4 पे ऊपर वाला पाथ क्यों नहीं दिख रहा है टोपो में? टोपो में एक ही पाथ क्यों दिख रहा है, पाथ वाया R7? वाई इज नॉट शोइंग पाथ वाया R4? पर एक ही बेसिक पाथ दिखाया उसने, दोनों दिखाने चाहिए थे ना टोपोलॉजी पे। हाँ तो मैं इतना देर से वही पूछ रहा हूँ कि दूसरा क्यों नहीं दिखा रहा है। राउटिंग टेबल में एक दिखेगा वो ठीक है, वो समझ में आता है क्योंकि वो बेस्ट फाइंड आउट करेगा। बेस्ट अगर नीचे वाला पाथ रहेगा तो राउटिंग टेबल में वो नीचे का पाथ दिखाएगा जो बेस्ट। लेकिन टोपो में वो दूसरा पाथ क्यों नहीं दिखा रहा? टोपो में तो दिखना चाहिए ना वो सभी पाथ। तो टोपो में ऊपर वाला पाथ क्यों नहीं बता रहा? इनफैक्ट टोपो शुड शो बोथ द पाथ्स। नहीं पता। अरे हुआ है ना, तुम लोग रिवाइज नहीं करते, कौन बताएगा? चलो बताओ फटाफट। व्हाई माय टोपोलॉजी टेबल ऑफ R4 is showing only one path via 47.7? ऊपर वाला जो पाथ है 46.6, उसके थ्रू वो क्यों नहीं बता रहे? हम्म, जल्दी बोलो दीदी। सभी के सभी कैसे गधे हो सकते हैं, इस एक ने भी तो पढ़ा होगा। तो वीडियो कोई नहीं देख। दूसरा पाथ क्यों नहीं दिख रहा है? थोड़ा तो सोचो, दिमाग लगाओ। बताओ जल्दी। हेलो। अरे टोपो में दो दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए? दिखना चाहिए। तो दिखना क्यों नहीं चाहिए दिख रहा सर, दूसरा? लिखना चाहिए। क्यों नहीं दिख रहा? शायद वो हाँ तो एक्टिव असेल. हाँ। ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का कुछ नहीं रही, वो हमने डिसेबल कर दिया ऑथेंटिकेशन। सर वो मैनुअल क्या है उस वजह से? मैनुअल क्या किया है? मैनुअल सबमिशन हमने किया ही नहीं अभी तक। R1 पे हमने कुछ भी टाइप नहीं त्याला किया। त्याच्या रूट तर त्याला त्याच्या रूट बद्दल माहिती नसेल. का माहित नसणार? ओके, लेट्स गो टू R2। अपना R2 पे जाते हैं, देखते हैं R2 पे दिख रहा है क्या। अगर R2 पे नहीं दिख रहा है तो कुछ प्रॉब्लम होगा। R2 के टेबल में दिख रहा है कि 100। देखो R2 के टेबल में तो 100 दिख रहा है वाया 12.1। अब R3 के टेबल में आते हैं, उसको दिख रहा है क्या, दिखता है?
तो IP रूट R3 के टेबल में दिख रहा है 23.2 से, जो कि R2 है। R3 के टोपो देखते हैं, IP EIG R3 टोपो। टोपो में देखो 100.0 के लिए बता रहा है वो पाथ 23.2 वाया, मतलब R2 से R3 वाला, तो R6 पे भी होगा। IP 100.0 नेटवर्क 36.3, मतलब तीसरे राउटर से, तो इसका टोपो में भी होगा। तो अगर तुम लोग ये देखो टोपोलॉजी टेबल 36.3, मतलब R3 राउटर। R6 पे देखते हैं तो ये R6 है, तो R6 के टेबल में अगर दिख रहा है तो R6 को इमीडिएट कौन कनेक्ट है? R4। तो R4 पे टेबल में अगर तुम लोग शो IP है जो तो टोपो करोगे तो वो नीचे वाला पाथ बताता है 47.7, ऊपर वाला पाथ क्यों नहीं बता रहा, जबकि R6 को पता है। तो R6 को अगर पता है तो R6 ने एडवर्टाइज किया होगा R7 को, सॉरी R4 को। तो जब R4 को एडवर्टाइज किया हुआ है तो R4 के टोपो में दोनों पाथ क्यों नहीं दिख रहे, एक ही पाथ क्यों दिख रहा है? हम्म अभी 100 डॉट के लिए R4 के पास कितने सक्सेसर है? As per R4's table, how many successors are there for R4 to reach 100 dot network? 2। टू तू दिख रहा है क्या रे टेबल के अंदर? वन इधर लिखा है ना अभी क्लियर दिख कट नहीं रहा 1। है सर, अभी 1 है हाँ वो। तो अरे दिख नहीं रही तो वन सक्सेसर है ना, टेबल के हिसाब से तो सक्सेसर एक ही है। हम लोग कैसे बोलेंगे दो सक्सेसर है? टेबल कह रहा है कि एक सक्सेसर, तो एक सक्सेसर है, तो दूसरा क्या कहलाएगा? तो ये कह रहा है तो पाथ हमारा 47.7 इज द सक्सेसर पाथ। तो अगर दूसरा पाथ कोई होता तो वो क्या कहलाता उसको? दूसरा पाथ अगर कुछ होता तो उसको क्या कहलाता वो? उसका क्या नाम होता? फीजिबल फीजिबल सक्सेसर। तो दूसरा वाला पाथ है तो वो ये 47.7 के नीचे और एक माया दिखना चाहिए था, लेकिन वो फीजिबल सक्सेसर नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा वो फीजिबल सक्सेसर ऊपर वाला पाथ? क्योंकि वो फीजिबल सक्सेसर नहीं बन पाया होगा। क्यों नहीं बन पाया वो फीजिबल सक्सेसर ऊपर वाला पाथ? ऊपर वाला पाथ फीजिबल सक्सेसर क्यों नहीं बन पाया? तो इतना हिंट दे रहा हो फिर भी तुम्हारा ध्यान में नहीं आ रहा, क्या करते हो तुम लोग दिन भर घर पे बैठ सर, के? FD हाँ FD क्या? उसका FD ज्यादा होगा, उसका नीचे के FD पाथ नहीं, से उसका to become a feasible successor there is a condition, right? हर एक पाथ feasible successor नहीं बन सकता, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो ही बनेगा। तो feasible successor बनने के लिए क्या कंडीशन है? feasible successor बनने के लिए क्या कंडीशन है? PD of an alternative path should be less than एज FD of the successor। मतलब जो भी अल्टरनेटिव पाथ है, अभी ये एज केस में कैसा है, ऊपर वाला पाथ, तो उस पाथ का AD जो भी होगा वो सक्सेसर के FD से कम होना चाहिए। अभी सक्सेसर का FD कितना है बताओ? जो सक्सेसर है उसका 161280। हाँ, मतलब 1 2 3 4 5 1,61,000, राइट? तो ऊपर वाला जो पाथ है शायद उसका AD
1,61,000 के ऊपर होगा, बराबर ना, तभी तो वो फिजिबल स्ट्रक्चर नहीं बनता यस है। सर, यस सर। नहीं तो वो बनता तो दिख जाता हमारे टेबल में। तो अगर हमें चेक करना है तो एक तो पहला ऑप्शन है, और डाल के चेक करते हैं दिखता है क्या। इसके लिए हमने चेक किया था, ये देखो, ये दो पाथ बता रहा है, ठीक है। ऑल अगर तुम लोग करोगे ना, तुम लोग अगर सिर्फ शो आईपी एजेंट पे टोपो करोगे तो सिर्फ सक्सेसर और फीजिबल सक्सेसर दिखेगा। लेकिन फीजिबल सक्सेसर दिखेगा मतलब क्या, जो फीजिबल सक्सेसर बना है वो ही दिखेगा। समझ में आ रहा है। यस सर। लेकिन अगर तुम लोग ऑल अगर डालते हो तो जो फिजिबल सक्सेसर नहीं भी बना है, लेकिन राउटर को तो पता है ना वो पाथ है करके, क्योंकि अपडेट्स तो आया होगा उसको R6 के पास से भी, तो राउटर को पता होगा। बिकॉज टोपोलॉजी टेबल फील्ड कैसा होता है कि whenever router started, whenever you configure the routers, hellos will be exchanged, parameters will be compared, neighborship will be formed. Once neighborship is formed, router will start to receive update. तो R4 राउटर को R6 से भी अपडेट आएगा, और नीचे वाला राउटर कौन सा है, R7 से भी अपडेट आएगा। जब दोनों तरफ से अपडेट आएगा तो उसको पाथ वाया R6 भी पता होगा, उसको पाथ वाया R7 भी पता होगा। दोनों का उसने एफडी कंपेयर किया, पाथ वाया R7 का सक्सेस एफडी सबसे कम निकला तो उसको सक्सेसर उसने डिक्लेयर किया। लेकिन पाथ वाया R6 जो था उसको कंपेयर किया, उसका एडी सक्सेसर के एफडी से कम होना चाहिए तभी वो फिजिबल सक्सेसर बन पाता। लेकिन उसका एडी सक्सेसर के एफडी से ज्यादा निकला या सेम निकला, इसके वजह से उसने उसको टोपोलॉजी टेबल में नहीं रखा, बराबर ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको पाथ पता नहीं, उसको पता चला ना, R6 इन्फॉर्म्ड हिम ना कि ये भी पाथ है करके। गेटिंग व्हाट माय पॉइंट। हेलो। यस सर। तो इफ यू टाइप शो आईपी या जैसे टोपोलॉजी ऑल, ऑल मतलब वो सभी पाथ बताएगा, एरा गैरा पाथ भी बताएगा, उस जिसने कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया वो भी दिखाएगा वो। तो अगर हम लोग शो टोपोलॉजी शो आईपी या जो टोपो ऑल करते हैं, तो अगर हम लोग जाते हैं, देखो ये जो तुम्हारा नेटवर्क है, ये नेटवर्क, इसके लिए ये कह रहा है कि ये मेरा बेस्ट पाथ है। देखो ऊपर सक्सेसर लिखा हुआ आ रहा है 1, बेस्ट पाथ क्या है 47.7, उसका एफडी क्या है 1,61,280। दूसरा वाला जो पाथ है ऊपर वाला पाथ 46.5, ये भी इसको पता चला था। लेकिन इसका एडी जो है, ये एडी सक्सेसर के एफडी से कम होना चाहिए, वो सेम है। ये 46.6 का जो एडी है 1,61,280, that AD should be less than FD, that AD should be less than FD of the successor which is 1,61,280। लेकिन ये केस में जो दूसरा पाथ है 46.6, उसका AD 1,61,280, that is as is it is as your successor's FD, सेम है, कम होना चाहिए वो। इसलिए 46.6 वाला जो पाथ है वो फीजिबल सक्सेसर नहीं बना। इसलिए तुम लोग जब नॉर्मल टेबल देखोगे शो आईपी एज आईपी टोपोलॉजी, तो वो नहीं दिखा रहा था क्योंकि वो फीजिबल सक्सेसर नहीं बना। समझ में आ रहा है। और वो जो Yes, हम लोग sir. जब हमने लेक्चर लिया तब क्या डिस्कस किया था कि टोपोलॉजी टेबल विल शो यू ओनली इंफॉर्मेशन अबाउट द सक्सेसर्स एंड द फीजिबल सक्सेसर, लेकिन फीजिबल सक्सेसर जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो ही बनाएगा। तो टोपोल टेबल, इफ देयर आर 4 पाथ्स टू रीच द डेस्टिनेशन, और लेट्स से इंस्टेड ऑफ 4 लेट्स से 3, इफ देयर आर 3 पाथ्स टू रीच द डेस्टिनेशन, तो वो चेक करेगा चलो ठीक है, किसका एफडी कम है, पहले वाले पाथ का एफडी कम है तो वो सक्सेस डिक्लेयर हुआ। ये जो दो पाथ है वो दोनों पाथ में से सिर्फ दूसरे वाले पाथ ने ही वो कंडीशन सेटिस्फाई किया फिजिबल सक्सेसर बनने के लिए, तो वो फिजिबल सक्सेसर कहलाएगा। तो अगर तुम लोग टाइप करोगे शो आईपी या फिर टोपोलॉजी, तो तुम्हें से दो पाथ दिखेंगे, एक सक्सेसर और उसके नीचे दूसरा फिजिबल सक्सेसर। लेकिन अगर तुम लोग जो तीसरा वाला पाथ है वो फिजिबल सक्सेसर नहीं बना और तुम्हें देखना है ऐसा कोई पाथ है क्या और, तो तुम लोग टाइप करोगे शो आईपी या फिर टोपोलॉजी ऑल, तो जितने भी अवेलेबल पाथ्स है वो सभी बताएगा। तो उसमें वो तीसरा पाथ भी दिखेगा जिसने कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया वो भी, लेकिन इसका मतलब वो पाथ यूज करेगा ऐसा नहीं।
वो पाथ कब यूज होगा? तो वो कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा फिजिबल सक्सेसर की। नहीं, वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया इसलिए तो वो फिजिबल सक्सेसर है नहीं ना, इसलिए वो नॉर्मल तुम्हें शो आईपी एड्रेस पर टोपोलॉजी में नहीं दिखाएगा, लेकिन वो कहाँ पे दिखेगा? इफ यू वांट टू इंक्लूड ऑल द रोज, टोपोलॉजी ऑल। सब कुछ देखो, टोपोलॉजी ऑल मतलब मुझे हर एक पाथ देखना है, जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है वो भी, जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है वो भी देखना है मुझे। देन यू आर गोइंग टू टाइप शो आईपी एड्रेस पे टोपोलॉजी ऑल, तो उसमें तुम्हें वो तीसरा पाथ दिखेगा। बट इफ यू टाइप शो आईपी एड्रेस पे टोपोलॉजी, वहां पे सिर्फ सक्सेसर और फिजिबल सक्सेसर दिखेगा। तो तीसरे पाथ कब यूज होगा? जब तुम्हारा सक्सेसर डाउन हुआ, बराबर। तो सेकंड पार्ट तुम्हारा फीजिबल सक्सेसर था, वो सक्सेसर बनेगा। क्लियर है? हेलो। यस सर। तो पहला पार्ट तो वहां डाउन हुआ, तो फर्स्ट फीजिबल सक्सेसर बिकेम योर सक्सेसर। अब सेकंड फीजिबल सक्सेसर जो है, मतलब सेकंड जो तीसरा वाला जो पार्ट है, वो अगर उसका एडी सक्सेसर जो न्यू सक्सेसर बना है, अगर उसका एडी वो न्यू सक्सेसर एडी एडी से कम निकलता है, तो ही वो टोटल टेबल में दिखेगा, नहीं तो वो ऑल में ही दिखेगा। लेकिन अगर तुम्हारा जो दूसरा पाथ है जो सक्सेसर वो भी डाउन हुआ, वो भी डाउन हुआ, तो अभी एक लौता पाथ बचा है जो कि तुम्हारा थर्ड पाथ है, तो वही अवेलेबल पाथ है, तो वही बनेगा सक्सेसर। समझ में आ रहा है? Yes, sir. सो by default we generally what we say, by default topology table shows information about the successor as well as the feasible successor. It does not show information about invalid paths. लेकिन अगर मुझे वो देखना है, तो I have to run, if I want to check all the paths irrespective of their FDs and irrespective of the condition, हर एक पाथ मुझे देखना है अवेलेबल, देन आई हैव टू टाइप शो आईपी एड्रेस पे टोपोलॉजी ऑल। तो ऑल करने के बाद हमें ये पता चला कि 46.6 वाया जो पाथ है, उसका एडी सक्सेसर के एफडी से कम नहीं है। दैट्स व्हाई द पाथ वाया 46.6 is not a feasible successor and that's why it is not into your टोपोल। तुम लोग कहोगे यो टोपोल टेबल में तो दिख रहा है, वो टोपोल टेबल में दिख रहा है, लेकिन कंडीशनल टोपोल टेबल में नहीं दिख रहा है, वो ऑल में दिख रहा है तुम्हें। मतलब राउटर जब सक्सेसर डाउन होता है तो देखता है, तो टोपोल टेबल में जब जाके देखेगा तो वो देखेगा कोई सक्सेसर है या नहीं, कोई दूसरा पाथ है या नहीं। अगर यहाँ पे कोई पाथ नहीं है तो वो यूज नहीं करेगा फिर। समझ में आ रहा है? Yes. यस सर। तो अभी ये तुम्हारे R4 को, ये सभी नेटवर्क्स कहाँ पे गया, 10.16 राउटिंग टेबल देखते हैं। राउटिंग टेबल में R4 के राउटिंग टेबल में you are able to see all these individual networks because auto summary is off, manual summary is not yet configured, तो हर एक इंडिविजुअल सब नेटवर्क एडवर्टाइज होगा। अब जैसे हमने डिस्कस किया कि ये दो नेटवर्क समराइज करके एडवर्टाइज होने चाहिए, नीचे के दो ऐसे गए तो भी चलेगा। तो you have to configure a summary route which includes only first two sub networks। तो पहले तो इंटरफेस के अंदर जाते हैं, शो इंटरफेस F1/0। कोई कंफ्यूजन ना हो तो हम लोग क्या करेंगे, जो ऊपर वाला पोर्ट है ना 0/0, उसको बंद करते हैं ताकि वहां से कोई अपडेट ना जाए। तो जो R1 का जो ऊपर वाला पोर्ट है 0/0, उसको हम लोग बंद करके रख दें ताकि ऊपर से कोई भी 100 का अपडेट ना जाए। ठीक है? अभी R4 को जो भी अपडेट आएगा वो नीचे वाले राउटर से ही मिलेगा, R7। तो अगर हम लोग R4 पे जाते हैं, शो की रूट करेंगे, तो
ये चारों नेटवर्क है, ऊपर वाला पाथ वैसे ही अभी ये केस में तो अवेलेबल है नहीं, तो उसको जो भी पता चलेगा नीचे वाले पाथ यानी वाया R7 से पता चलेगा। सो नाउ ही इज नोइंग अबाउट इंडिविजुअल नेटवर्क्स, राइट। तो अभी हम लोग जाएंगे नीचे वाले पोर्ट पे 1/0 और उसको कहेंगे कि वॉट एवर यू आर एडवर्टाइजिंग, प्लीज डोंट एडवर्टाइज इंडिविजुअल नेटवर्क्स बट प्लीज एडवर्टाइज समरी रूट 10 और यहाँ पे समरी रूट कॉन्फ़िगर करेंगे 100.0। हमें इससे पहले दो नेटवर्क सब नेटवर्क ही इंक्लूड करने हैं। तो पहला 1.0/29 है और दूसरा 1.8/29 है। तो 1.0 का लास्ट आईपी, सॉरी फर्स्ट आईपी क्या होगा, वही होगा 100.0 और जो लास्ट सब सेकंड सब नेटवर्क का लास्ट आईपी, सेकंड सब नेटवर्क क्या है 100.8, 100.8 का लास्ट आईपी क्या है 100.15। तो 100.0 से लेके 100.15 15 आईपी, मतलब 15 आईपी बैठे ऐसा ब्लॉक मुझे आइडेंटिफाई करना है। तो 15 आईपी किस में बैठेंगे, 16 के ब्लॉक में बैठेंगे। 16 का ब्लॉक मतलब क्या, /28। सो 255.255.255.240। क्लियर है। देखिए हमने समरी राउट Yes, कॉन्फ़िगर sir. किया FA1/0 पे, सेइंग दैट इंस्टेड ऑफ एडवर्टाइजिंग सब नेटवर्क्स प्लीज एडवर्टाइज 100.0/28। तो जो पहले दो है वो क्लब करके एक ही जाएगा, अभी 100.0 अलग और 100.8 अलग नहीं दिखेगा, लेकिन 24 और 32 दिखेगा क्योंकि उसके लिए हमने समराइजेशन नहीं किया। इफ यू गो ऑन R4, इफ यू गो ऑन R4 to IP root, we should not able to see that 0 and 8। देखो ये एडवर्टाइज किया उसने /28। अगर तुम लोग ऊपर जाके देखोगे, पहला जो हमने राउंड टेबल देखा था, तो वहां पे देखो 100.0 था, 100.8 था, 100.16 और 100.24। उसमें से हमने 100.24 100.16 को कोई समराइज नहीं किया, इसलिए वो एज इट इज फोर्थ राउटर पे दिखेगा। लेकिन 100.0 100.8 को हमने R1 पे समराइज करके कॉन्फ़िगर एडवर्टाइज किया, इसलिए वापस अगर हम लोग R4 पे देखेंगे तो 100.0 100.8 नहीं दिख रहा है, लेकिन 100.0/28 दिख रहा है। क्लियर है। और ये 1624 जिसको हमने समराइज नहीं किया, तो ये वैसे का वैसे ही जाएगा। अगर ये चारों मुझे समराइज फॉर्म में एडवर्टाइज करने हैं, तो व्हाट समरी राउट आई विल राइट, चारों मुझे अगर समरी करके एडवर्टाइज करना है तो व्हाट समरी राउट आई विल राइट। समराइजेशन करने के लिए क्या फाइंड आउट करना होगा तुम्हें, कैसे पता चलेगा कि किस स्लैश में सब कुछ बैठेगा, कैसे फाइंड आउट करोगे। पहला सबनेटवर्क का पहला आईपी और लास्ट सबनेटवर्क का लास्ट आईपी, इससे तुम्हें रेंज मिलेगा और वो रेंज किस बड़े ब्लॉक में बैठता है वो ब्लॉक फाइंड आउट करो। तो पहला सबनेटवर्क क्या है 100.0, तो 100.0 मतलब पहला आईपी 100.0। लास्ट सबनेटवर्क का लास्ट आईपी, लास्ट सबनेटवर्क क्या है 100.24, 100.24 का लास्ट आईपी क्या है 100.31। सो 100.0 से लेके 100.31, 31 का ब्लॉक मिला तुम्हें, तो 31 का ब्लॉक मतलब वो 32 के ब्लॉक में बैठेगा। अब 32 का ब्लॉक मतलब स्लैश कौन सा, ब्लॉक ऑफ 32 /32 का ब्लॉक स्लैश कौन सा, कितना, हेलो, अरे आवाज आ रहा है क्या मेरा, /27। /27। सो अगर तुम लोग 100.0 वो आईपी समरी एड्रेस लिया जाए P10, फिर 192.168 100.0 स्पेस 255.255.255.224 करते हो, तो ये चारों को क्लब करके वो एक ही समरी राउट सेंड करेगा। कौन तीन गायब हुए रे, 18 थे, 15 ही थे। क्लियर है।
मेरा Yes, आवाज sir. आ रहा है क्या रे? आवाज आ रहा है क्या? Yes, sir. सर नेटवर्क खूप तुम- फ्लक्च्युएट होतोय त्याच्यामुळे आम्हाला कमी जास्त आवाज येतोय. सगळ्यांना फ्लक्च्युएट होतोय का? हाँ सर. नाही, प्रत्येकाला माझा आवाज फ्लक्च्युएट होतोय का काही लोकांना होतोय फक्त? होतोय सर. होतोय सर. हो सर थोड़ा थोड़ा होता है. कळालं का आता? कळालं का? हो सर. Yes. यस सर. ठीक है. So now we have done summarization, but for only first two subnetworks. The last two of that 100.0, sorry 100 dot major network जो भी 100.24, 100.30, 100.16 और 24 है वो इंडिविजुअली जा रहा है. ठीक है, तो ये हमने समाराइजेशन किया. तो now we will see, we will enable the stub feature. So go to R1 router EIGRP 10. EIGRP stub space question mark. Now what you're saying, सिर्फ connected network, let's say first is connected, receive only, redistributed, static, summary, इतने सारे options है. ठीक है, तो अगर तुम लोग पहला ऑप्शन देखते हो, अगर तुम लोग टाइप करते हो शो EIGRP stub connected on R1 तो क्या होगा? If you type show, sorry, if you type EIGRP stub connected तो क्या होगा? If you type EIGRP stub connected, what will happen? क्या होगा? EIGRP stub connected. Router will advertise only connected networks. राउटर विल तुम लोग पढ़ते नहीं रहे, इसलिए मूड नहीं आता पढ़ने में. तुम लोग ऐसे ही उठ के चले आते हो लेक्चर में. When you type router EIGRP stub connected, that means you are telling your router that please advertise only connected networks. Don't advertise any summary route. Don't advertise any redistributed route. Nothing. Only connected network. Please advertise. So if I type router EIGRP stub connected, my R1 router will be advertising only connected networks. So if I type again, if I'm checking the round table of R4 router पे वो कनेक्टेड नेटवर्क दिखेगा. इसका मतलब ये सब कुछ दिखेंगे वापस. 100.0, 100.8, 100.16, 100.24. क्योंकि R1 पे हमने समराइजेशन किया था, लेकिन अभी वो समरी राउट नहीं प्रोपोगेट करेगा. क्यों? Because on R1 you told R1 please advertise connected EIGRP and stub router and advertise only connected networks. So connected networks में summary route नहीं आता है. So he's advertising individual subnetworks. So if you go to your R1, if you remove that and type no, next thing is what? Next thing is EIGRP stub receive only. If you type receive only, क्या होगा receive only से? On R1 you are typing EIGRP stub receive only. That means he's going to only receive updates. He's not going to advertise his networks to anyone. तो हमने R1 को किस मोड पे रखा है? रिसीव ओनली. सो इफ यू गो ऑन फोर्थ राउटर, अभी उसको ये 100 वगैरह कुछ नहीं दिखेगा अभी, because R1 is not going to advertise any networks. So if R1 is not going to advertise any network, how come other routers will come to know? अगर आप देखोगे तो 10 का नेटवर्क भी गायब है. 10 का भी नहीं है, 100 के जो 4 है वो भी नहीं है. Because your R1 router is stuck receive only mode. So he's only going to receive updates from the neighbor. He's not going to advertise any of his networks to the neighbor. तो हमने रिसीव ओनली मोड से उसको निकाल दिया. बाद में क्या है?
समरी, लेट्स से समरी, इसका मतलब क्या है? व्हाट R1 विल एडवर्टाइज? R1 विल एडवर्टाइज ओनली अबाउट समरी रूट्स, समरी रूट, समरी इज रूट। नॉट गोइंग टू एडवर्टाइज कनेक्टेड, कुछ भी एडवर्टाइज नहीं करेगा। अभी रिसीव ओनली नहीं है इसलिए एडवर्टाइज तो करेगा, लेकिन कनेक्टेड समरी जो है वो ही करेगा। सो हम लोग अगर R1 पे करते हैं कि प्लीज एडवर्टाइज ओनली समरी रूट्स, अगर हम R4 पे जाएंगे तो अगर देखते हैं R4 पे, तो ये जो समरी रूट तुमने क्रिएट किया था ना 100.0/28, तो वो ही एडवर्टाइज हुआ। बाकी के देखो, अगर तुम लोग बहुत पहले देखो तो हमने समरी रूट के साथ साथ वो दो इंडिविजुअल नेटवर्क पे एडवर्टाइज हो रहे थे। इधर इसमें दिख रहा है कि हाँ, देखो ये समरी रूट था तुम्हारा, और उसके साथ साथ वो 100.16 और 100.24 ये अलग अलग सब नेटवर्क, ये दोनों एडवर्टाइज कर रहा था वो अलग से, क्योंकि समरी रूट 100.0 और 100.8 के लिए था, लेकिन 100.16 और 100.24 के लिए कोई समरी रूट था नहीं। तो ये पहले दो नेटवर्क को क्लब करके एक एडवर्टाइज किया, और ये दोनों को इंडिविजुअल किया। मतलब जो पहले चार दिख रहे थे 100.0, 100.8, 100.16, 100.24, तो हमने 100.0 और 100.8 को हमने क्लब किया, तो दोनों का ये एक दिख रहा है। लेकिन 100.16 इंडिविजुअली और 100.24 इंडिविजुअली एडवर्टाइज हुआ। अभी क्या हुआ? अभी हमने कराउटो को कहा कि यू प्लीज एडवर्टाइज ओनली समरी रूट, तो उसने 100.0/28 तो एडवर्टाइज कर लिया, लेकिन ये 100.16 और 100.24 ये इंडिविजुअल सब नेटवर्क एडवर्टाइज नहीं किया उसने। तो इफ यू स्क्रॉल डाउन, look, he is only able to see 100.0/28, but he is not able to see any 100.16 and 100.24 network. वो भी तो कनेक्टेड है, लेकिन the what we inform to R1, EIGRP stub summary. That means he is going to advertise only summary route which is available with him. इसको हम लोग करेंगे डिसेबल। Disable the summary और इसको निकाल देते हैं। अब क्या ऑप्शन है? कनेक्टेड हुआ, रिसीव ओनली हुआ, समरी हुआ, स्टैटिक। तो चलो अगर स्टैटिक देखना है तो मैंने ऐसे ही शो रन करता हूँ R1 पे, R1 पे एक शो रन करता हूँ मैं। तो ऐसे ही एक नेटवर्क के लिए एक स्टैटिक रोड मैंने क्रिएट किया है। देखो ये एक नेटवर्क है, ये है नहीं किधर ही, लेकिन मुझे जब दिखाना था स्टैटिक रूट, तो एक स्टैटिक रूट नॉर्मल से कॉन्फ़िगर किया है। ये नेटवर्क कहीं पे भी है नहीं। आईपी रूट 200.0 और ये 15.5, मतलब R1 का जो नेबर है ना नीचे वाला 15.5, उसको पॉइंट किया है। तो R1 के टेबल में अगर तुम लोग देखोगे, R1 के टेबल अगर तुम लोग देखोगे शोर आईपी रूट करके, तो उसके टेबल में क्या क्या है? उसके टेबल में कनेक्टेड नेटवर्क्स है, उसके टेबल में EIGRP लर्न नेटवर्क्स है, तो उसके टेबल में एक समरी रूट भी है जो हमने कॉन्फ़िगर किया है, तो उसके टेबल में एक स्टैटिक रूट भी है जो हमने कॉन्फ़िगर किया है। तो हम अगर इसको राउटर को बताते हैं कि EIGRP स्टब स्टैटिक, तो वो सिर्फ स्टैटिक रूट ही एडवर्टाइज करेगा। बाकी तुम्हारा 100 का जो था ना, अभी अभी फिलहाल R4 पे क्या दिख रहा है 100 का, ये एक समरी रूट दिख रहा है ना, अभी वो तो हमने निकाल दिया। अगर तुम लोग वापस अगर स्वाइप आउट करके देखोगे तो अभी वापस एक समरी रूट और दो इंडिविजुअल दिखेगा, एक समरी रूट और दो इंडिविजुअल दिखेगा। तभी हम लोग क्या चाहते हैं कि अभी सिर्फ स्टैटिक रूट दिखे, बाकी कुछ ना दिखे। तो विल गो ऑन R1 config, देन स्टैटिक रूट हमने 200 के लिए कॉन्फ़िगर किया है, ठीक है। इंटरफेस F1/0। देखो अगर तुम लोग R4 पे जाओगे, स्टैटिक हमने
EHRP stub router EHRP 10 EHRP stub. Now EHRP stub static. So if you type EHRP stub static, ये सिर्फ स्टैटिक ही एडवर्टाइज करेगा। तो ये बाकी अभी आपके R4 पे देखो आपका ये भी दिख रहा है 100, ये भी कनेक्टेड है, ठीक है, लेकिन अभी और ये 200 भी दिख रहा है। अभी क्या होगा, ये कुछ भी नहीं दिखना चाहिए 100 का, सिर्फ स्टैटिक रूट R1 ने एडवर्टाइज किया है। तो R4 के टेबल में यू वोंट बी एबल टू सी एनी, देखो 10 का नेटवर्क भी नहीं है, नीचे आओगे तो 100 का भी नहीं दिखना चाहिए। देखो 100 नहीं दिख रहा है, ये स्टैटिक दिख रहा है। समझ में आ रहा है? So this gives the flexibility to your router to decide what your router should advertise and what he should not. तो तुम लोग R1 को ये मल्टीपल ऑप्शन है, कनेक्टेड, समरी, नो, फिर क्या दूसरा ऑप्शन क्या था, कनेक्टेड था, समरी था, रिसीव ओनली था। इसमें से क्या हुआ, कनेक्टेड R1 एडवर्टाइज्ड ओनली कनेक्टेड नेटवर्क्स, समरी R1 एडवर्टाइज्ड ओनली समरी रूट, then receive only R1 received everything but he didn't advertise anything. Now you have typed stub static, that means R1 advertised only static route, बाकी जो भी कनेक्टेड नेटवर्क्स था 100 का वो उसने एडवर्टाइज नहीं किया। समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। तो ये प्रैक्टिकल तुम लोग करोगे पूरा, और कल को एक्सक्यूज नहीं चलेगा क्योंकि ये हुआ नहीं, ये पता नहीं, वो पता नहीं। ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो इसको देख के एज इट इज वैसे ही करोगे, ठीक है? और सिर्फ टाइप Yes. मत करो, ठीक है सर। आउटपुट देखा करो क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। इट्स नॉट अबाउट, आई मीन 50% इज कॉन्फ़िगरेशन, 50% इज चेकिंग। तुम लोग सिर्फ टाइप करते हो, बस ये ऐसा कॉन्फ़िगर करना है, लेकिन अगर किधर क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है वो कौन चेक करेगा? तो वो शो रन करके शो आईपी रूट टोपोलॉजी टेबल, शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी, शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी ऑल, शो आईपी EIGRP नेबर, जिस जिस टाइम पे जो जो कमांड इंपॉर्टेंट है वो चेक करके देखो क्या दिखना चाहिए क्या नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है। क्लियर है? तो दिस वाज अबाउट योर EIGRP प्रैक्टिकल। पहला जो भी तुमने किया वो बेसिक सिर्फ नेबरशिप फॉर्म किया, नेटवर्क एडवर्टाइज की, बाद में फिर तुमने की चेन किया, फिर समराइजेशन किया, मैनुअल ऑटो भी किया, मैनुअल भी किया, उसके बाद तुमने स्टफ के फीचर्स इनेबल किए, रिसीव ओनली, स्टैटिक, देन कनेक्टेड, समरी। क्लियर है? Yes sir. तो ये आज प्रैक्टिकल करके कल इसको खत्म करोगे, मतलब कल मुझे कोई बताएगा नहीं कि ये मेरा हुआ नहीं करके, मैं किसी को भी पूछ सकता हूँ स्क्रीन शेयर करो और दिखाओ करके, तो ये सब कुछ मुझे दिखना चाहिए, ठीक है? Yes. तो कल Okay, कितने sir. बजे ले, कल कितने बजे लेना है? तो फिर हो क्या? तो फिर इसको पिछली बार प्रॉब्लम था 7 बजे का। तो फिर ठीक है, कल 8 बजे रखते हैं सुबह। 9 बजे हेलो, इंग्लिश का है सर। हाँ 9 बजे इंग्लिश का है।
तो 10 बजे करो ना, पोस्टपोन करो ना उसको। मैडम को बोल दो। इंग्लिश का ऑफलाइन हाँ कल ऑफलाइन लेक्चर आहे की ऑनलाइन लेक्चर आहे? त्यानंतर तो पण लेक्चर असतं ना सर अनिकेत सरांचं. ते किती वाजता असतं? सेम आजचं जे 11 टायमिंग होतं सेम टायमिंगला सर. 11 वाजता असतं. नाही 10 वाजता असतं ना. मग तुमचं इंग्लिश हा, कसं sorry. असणार 10 आहे? त्या ते 11:30. टायमिंगला तुमचं इंग्लिश 9 ते आणि 10 सर ते इंग्लिश. अनिकेतचं लेक्चर कसं असेल? 9 ते 10 इंग्लिश आणि न- 10 नंतर अंते सरांचं. 9 ते 10 आणि 10 ते जे काय असेल 11:30. उद्या दोन्ही आहेत तुमचे. हो. हा सर. आज टाइम ठीक आहे ना सर 12चा? बघू नाही तर उद्या 7लाच घेऊ. तोफलशी बोलतो मी. ठीक आहे 7 to 9. ठीक आहे. सर 7:30 to 9 ओके. पण 7:30ला म्हटलं तर तुम्ही 8 वाजेपर्यंत येता. आज किती वाजता आला तू बघत? 15 मिनिटं लेट आलास. तू 7:30ला म्हणून जर तू 7:40ला आलास तर काय तुला उपयोग आहे? 7:30ला नाही सर करू पण मग मॉर्निंगला नका घेऊ सर. हा मॉर्निंगला नको सर. मॉर्निंगला काय आहे? मॉर्निंगला घेतलं तर काय प्रॉब्लेम? हा लवकर झोपायचं सर संध्याकाळी थोडं. मॉर्निंग जमणारच नाही. हॅलो तर ह्याच हा, टाइम सर 12ला नाही? पण ठीक आहे 12ला घेऊ मग. ठीक आहे मग उद्या 12 वाजता घेऊ. ठीक आहे पण 12ला मला सगळे पाहिजे आणि प्रॅक्टिकल वगैरे जे आहे ते सगळं मला कम्प्लीट पाहिजे. उद्या मी कुणालाही सांगेन स्क्रीन शेअर करा आणि दाखवा. तर माझं हे नाही झालं ते नाही झालं तर तुमचा प्रॉब्लेम आहे. व्हिडिओ रेकॉर्डेड आहे असं तुम्हाला बघून कॉन्सिडर करायचं. ठीक आहे ठीक आहे Yes. चलो विल स्टॉप फॉर टुडे. टुमॉरो एट 12 o'clock. चलो बाय.